اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو ہماری سانسوں کا مالک ہے۔ ہمیں جو کمفرٹ ملتے ہیں اس میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار ہم لوگ ہمیشہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جی نے ہمیں یہ نہیں دیا، اللہ جی نے ہمیں یہ نہیں دیا۔ کمپلین 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 کمپلین۔ لیکن کبھی آپ ذرا دونوں چیزوں کو لکھیں تو صحیح کہ آپ کو ملتا کیا ہے اور آپ مانگتے کیا ہیں۔ آپ کے شکوے کم پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ہوا جس میں آپ بریتھ کرتے ہیں، یہ رنگ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ ذائقے جو آپ چکھتے ہیں، یہ رشتے جو آپ کے کہے بغیر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سوچے، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں کبھی کسی ایک رات آپ بھوکے سوئیں؟ نو میٹر وٹ، آپ کے پاس نوکری ہے نہیں ہے، آپ میدانوں میں جا رہے ہیں، پہاڑوں میں جا رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، بٹ کھانا آپ کو مل جاتا ہے۔ کوئی مشکل پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آتا ہے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ پھر ہمارے اندر ڈر، کل کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے، ہمیں کھانا نہیں ملے گا، ہم روڈ پہ آ جائیں گے۔ لیکن اس اللہ پہ یقین نہیں کرتے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، لمبا ہو، چھوٹا ہو، کالا ہو، گورا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے سب اسپیشل ہے۔ ہم نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، سٹاپ سائن لگائے ہوئے ہیں کہ یار اس کو نہیں آنے دینا، اس کو نہیں آنے دینا۔ ہم سب لوگوں نے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں قائم کیا ہوا ہے۔ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے لوگوں کو، ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم محبت نہیں کرتے، ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے، لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، انڈرمائن کرتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ I think this thing is not going to work, man۔ ہم اس وقت پل صراط کراس کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر سے جا رہے ہیں، اور جو یہ برج ہے، اسی کے اوپر بڑے بڑے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہوتی ہے ایک وقت کے کھانے کی، اور ہم کیا کرتے ہیں 10 وقت کا کھانا ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ہر اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکر ادا کریں تو میرے اللہ بادشاہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہم انسانوں نے تو ہر چیز پہ قبضہ کر لیا ہے، مذہب کے نام پہ رنگوں پہ قبضہ کر لیا، تیرا گرین ہے، میرا نیلا ہے، اس کا پیلا ہے۔ شیپس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تیرا چاند ہے، میرا ستارہ ہے، اور میرا پھولوں پہ قبضہ کر لیا ہے، دنوں پہ قبضہ کر لیا ہے، تیرا جمعہ ہے، میرا ہفتہ ہے، تیرا اتوار ہے۔ کیونکہ انسان بلیف کو بھی، فیتھ کو بھی مٹیریلسٹک طریقے سے سوچتا ہے، اس کو کانکر کرنے کی سوچتا ہے۔ مذہب، یہ چیزیں کسی کی میراث نہیں ہوتی، یہ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے اس کریٹر کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔
آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے یہاں پہ ہیں اینڈ ون ڈے یو ہیو ٹو گو بیک. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اتنا جمع کر لیتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا جس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم جمع کر رہے تھے ہمارے پڑوس میں چند لوگ بھوکے تھے, چند لوگوں کے بچے اسکول نہیں جا رہے تھے. یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے. ہم کہتے ہیں دعا کریں, یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں, آپ کو ہاتھ دیا ہے, آنکھیں دی ہیں, آپ کو, آپ کے اندر اتنی امیجنیشن ہے. اللہ کہتے ہیں آپ کو یہ سب نعمتیں دی ہیں, اٹھے کام شروع کریں, اسٹرگل کریں. جب آپ کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کرتے ہیں. جیسے آج کل کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور ہم سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان جیت جائے, ہندوستان جیت جائے, بنگلہ دیش جیت جائے. اللہ نے ویژن دیا ہے, اب جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو کوشش کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, اور کھیلنا پڑے گا, فیس کرنا پڑے گا, پھر جیتنا پڑے گا. ایسے دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں قبول کرنے کے لیے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, اللہ جی ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, ہمیں معاف کر دیں. معافی وہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے آپ معافی مانگ رہے ہیں, جو غلطی سے آپ نے کی ہے, آپ اس کے بعد وہ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں. ہم سمجھتے ہیں کل بھی ایسا ٹائم رہے گا, پتہ نہیں, ہمارے پاس تو بڑی زندگی ہے, لیکن وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک دن آپ کو واپس جانا ہوتا ہے. وعلیکم السلام. سو تھنک اباؤٹ اٹ یار. ہم ابھی لائف پہ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی. آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ڈفرینٹ. سوچیں, ہمارے ارد گرد کوئی بھی بھائی آ کے یہ کہے کہ یار فلانی جگہ پہ ایک بھائی ہے وہ ناراض ہے, یا اس کے پاس نوکری نہیں ہے, یا اس کا بچہ اسکول نہیں جا رہا, تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ ہم. اینی وے, میں اپنے دوست کو لے رہا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی بھائی, آئی لو یو. آئی لو یو. اچھا میں پتہ آج اس دن کیا, جی میں سوچ رہا تھا اس دن آپ ناراض ہو گئے ہیں. میں بعد میں مجھے اتنی شرمندگی نہیں ہوتی. یار, میں ناراض نہیں ہوا, میں بھاگ گیا تھا. اچھا آج میری مہرو نے بہت کلاس لی ہے. دیکھو یار, شکایت کرنا ہے میں مہرو کی. اچھا نہیں, یار, بہت اچھی لڑکی ہے, مذاق کر رہا ہوں. میرو میرا چھوٹا سا بچہ ہے, ٹھیک ہے, آپ یقین اور کریں بہت رسپیکٹ کرتی ہے آپ کی, اتنی تعریف کرتی ہے نا مہرو. نہیں, اچھے لوگ ہمیشہ دوسروں کی عزت اور تعریف کرتے ہیں. مہرو بہت میرو میرا سلجھی ہوئی. چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے. یس, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. نہیں, مہرو بہت اچھی لڑکی ہے, بہت اچھی لڑکی ہے. میں اس کو تنگ کر رہا تھا. کیا کہہ رہی تھی؟ نہیں کچھ بھی نہیں. پھر میں نے کہا چلیں میں جا رہا ہوں, کیونکہ پھر میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا, تو پھر وہ لگی رہی. نہیں, اچھی لڑکی, بہت اچھی لڑکی ہے, لیکن آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے. نہیں وہ چھوٹا بچہ ہے یار. دعا یہ کرو ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ اچھا کریں, اور الہی امین. ہاں ان کی بالکل. عزت کے اندر. اس سے میں نے تنگ کیا, میں بعد میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا. میں نے کہا یار ایک گھر کے دادا یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو میں لائف پہ آتا نہیں ہوں, آتا ہوں تو وہی تنگ کر دیں. تو پھر میں نے دل میں سوچا یار, میں نے کہا میں فون کرتا ہوں آپ کو. اور نہیں تو یہ بھائی, پوچھا بہت اچھا لگ رہا تھا, دوست انجوائے کر رہے تھے, مجھے خود کو بہت اچھا لگ رہا تھا. آج تو ہماری جان ہو, تو وہ تو ایک جوک تھا نا, فنی تھا, مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. لیکن میں تھوڑا بھاگ اس لیے گیا کہ بیچ میں نا بہت سارے لوگ آ گئے تھے,
جس کی وجہ سے مجھے بھاگنا پڑا. جس ٹاپک میں بات کر رہا تھا میں نے کہا یہ سب خراب ہو جائیں گے اور سب سے پھر مجھے جوتے پڑیں گے. نہیں امداد یار، آپ چھوٹے بھائی ہو اور آپ یقین مانو، آپ اچھے لگتے ہو بھائی، دل سے اچھے لگتے ہو. اور یہ میں دل سے کہہ بہت رہا ہوں، مطلب میں وہ جی نہیں، میں مطلب میں اتنی تعریف نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو دیکھ کے، آپ کو مل کے، آپ سے بات کر کے ایسا لگتا ہے میں اپنے کسی بھائی سے بات کر رہا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے واحد بھائی، آپ یقین کریں مجھے اس دن برا نہیں بلکہ مجھے اچھا لگا، بہت مزہ آیا، دوست لوگ بہت خوش ہوئے. اور کچھ لڑکیاں تھیں وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وحید بھائی نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے. واٹس ایپ پہ میرا مذاق اڑاتے رہے، قسم سے آپ یقین کریں. مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھو امداد، واحد بھائی کی چوائس بالکل پرفیکٹ. میں نے کہا ہاں یار صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہا یار ڈفرینٹ چیز کرتے ہیں، میں کہا ایسا سرپرائز دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی نہیں پتہ اچھا واحد بھائی، آپ سچ ایک بتائیں، آپ کو جی مہرو نے اس دن لائیو شیئر کی تھی، آپ خود سے آئے تھے؟ میرے خیال مہرو نہیں، اچھا ملک صاحب آئے. جی ملک صاحب آئے ہیں. واحد بھائی جی کیا حال ہے؟ آپ سے کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا آپ نا میسیجز پڑھتے رہیے گا، ساتھ ساتھ اوکے، بات بھی بے کریں. شک السلام انسان کو علیکم وہی وحید ملتا بھائی، کیا ہے حال ہے؟ جس کی کوشش السلام کرتا ہے. علیکم ملک صاحب. اللہ کا شکر ہے جی. سنو کیا حال چال ہے؟ ملک صاحب میں السلام بالکل علیکم. ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. امداد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. اور ہم سے طبیعت گھر پر سب خیر ہے؟ جی بالکل. اور اور اصل میں اگر پٹھے کام کرنا کرے لے روٹی نہیں دیں. نہیں کل تو دیوالی منائی ہے نہیں جناب. نہیں کل یار، کل بلکہ طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، پتہ کس طرح؟ وہ تھوڑے تو رنگ تو نہیں چھٹے ہیں. نہ وہ اصل میں دیوالی میں لائی ہے نا، وہ میرا وہی الزام ہے، پڑھائی جان جی احمد میں نا، میرا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی میوزک لگتا ہے میں ڈانس کرنا شروع کر چھوڑنا. وہ کہتے سردی میں کیونکہ ڈانس یا کہتا ہے میری سانس جڑا ہے نا، میری جو اتر سے سانس ہو گیا. وہ اوپر نیچے ہو گیا. میں گھر آیا بڑی طبیعت سے، پھر دوائیاں کھائی، وہ اس کے اندر ایک نیند کی گولیاں کھا لی. میں گھر آتے ہی سو گیا، اور ابھی آنکھ کھلی ہے تو اس وقت مطلب 1.5 گھنٹہ پہلے آنکھ کھلی ہے، ابھی سورج نہیں نکلا. تو میں نے کہا چلے یار کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب بہن بھائی ہیں یار، دنیا کے اندر ہر آدمی کے تہوار منانے چاہیے، نہیں دنیا میں اچھی کوئی بات آدمی ہے. برا نہیں ہے. آپ کے بعد مشترک ہونا اور چاہیے. ہم بھی ادھر ظاہر یہی ہے کرتے ہیں. انسان کو ہر آدمی کی خوشیوں میں اور اس کے شریک غموں ہونا میں چاہیے. ان کے ساتھ رہنا چاہیے. بالکل. بہت اچھی بات. یہ لوگ کرتے نہیں ہے، اس لیے تو ہمارے اندر بہت دوریاں ہو گئی ہیں. یہ ہمیں ہاں کرنا جی، چاہیے تاکہ یہ اتنے فسادات نہیں ہوتے. ہاں بالکل بالکل اگر بالکل، اس ہم کا اپنی کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے نا، ہمارا صلی یہ اللہ حال نہیں علیہ ہوتا. وآلہ وسلم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں انہوں نے اپنے اسلام کے لیے ہر کسی کو ہر کسی کے ساتھ گئے ہیں. دیکھو غیر مسلم ہو گئے، اس کے اوپر ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے اوپر وہ کچرا پھینکتی تھی، پھر 2-3 دن نعوذ نہیں باللہ، پھینکا. استغفر اللہ. یار میں نے ایک واقعہ دیکھا، کہ جہاں پہ میلے پریڈیں ہوتی ہیں تو اس میں جھنڈیاں لگتی ہیں، پاکستان اور ہندوستان کی جھنڈیاں لگتی ہیں. تو ایک دن پہلے میلہ تھا، تو وہ میدان کے اندر سارا کچرا پڑا ہوا تھا. وہاں پہ راستے میں جیسے روڈ پہ جا رہے ہیں تو وہ پاکستان کی جھنڈیاں بھی پڑی تھی، پاکستان کا ایک جھنڈا پڑا ہوا تھا. میں وہاں پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک انڈین آیا روڈ کے اوپر چلتا ہوا. اس نے اچھا نیچے دیکھا پاکستان کے جھنڈا پڑا ہوا ہے نا، کاغذ کے اندر جو بنا ہوتا ہے. اس نے یوں اٹھا کے چوما، اس کو طے کر کے جیب میں ڈال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مطلب جھنڈے کا احترام ہے، محبت ہے. وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا جھنڈا بھی زمین کے اوپر رہ کے ڈس ریسپیکٹ ہو. دیکھیے یہ اندیکھا واقعہ ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی اس کا ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا. لیکن پتہ کیا، اس نے ایک جسچر دیا، ہمیں اچھا جسچر دیا. پچھلے دنوں کیا ہوا، میرے ایک دوست ہے، انہوں نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جاتے تھے اور کسی کو بھی کہتے تھے کہ میں آپ کو نا 500 روپے دیتا ہوں،
इस झंडे को आप फाड़े। इंडिया का झंडा था, पाकिस्तानी लड़कों को कह रहे थे। तो कहता है नहीं हम नहीं फाड़ सकते। कहता है अच्छा मैं आपको आईफोन भी देता हूँ, 500 भी देता हूँ। कहता भाई नहीं फाड़ना। कहता मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ, फाड़ दो। कहता मैं क्यों फाड़ूं? वाह, वो वीडियो बनाते थे, वो है यूट्यूब के ऊपर है। मेरा कहने का मतलब है ये यार, बिल्कुल है। उन्होंने कहा मैं पिछले कब दिनों में रमजान के ऊपर भी उन्होंने वीडियो बनाई है कि आप पानी पियो और मैं आपको आईफोन दूंगा, हाँ, हर रोज तोड़ो। ये सब मोहब्बत देने से होता है। एक मेरे दोस्त है, हिंदुस्तान से है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। वाहिद भाई क्या हाल है जी? वाहिद भाई आपसे कह रहे हैं, अच्छा ये तो मलिक साहब के पुराने मैसेज है। सलाम भाई। जमान भाई आए हैं जी नीचे, जमान भाई इस्लाम कह रहे हैं आपको, वही बोल सलाम जुबान भाई, जमान बाबू। सलाम भाई, वालेकुम सलाम। जुबान भाई मेरी जान, मेरा भाई, अल्लाह ताला खुश रखे। और तो कहने का मतलब ये होता है कि द वन सिंगल जेस्चर कैन मेक अ सच अ बिग डिफरेंस। और दूसरी बात, ये जो हमारे एंकर है टीवी के ऊपर बैठ के आग लगा देते हैं, एक कह देते हैं पुराना जो वाक्य नहीं भी होता उसको लाते हैं, फिर क्या होता है लोगों के दरमियान में आग भड़क उठती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बांग्लादेश के अंदर एक शहर पसंद में जाके उनका वो जो दोपेरा हो रहा था, वहां पे जाके एक हरकत की। क्या हुआ? लड़ाई। 6 लोग मर गए, वालेकुम सलाम 20 अंगूर। मंदिर जला दिए गए। उसका रिएक्शन एक हफ्ते बाद आया, उन्होंने 15 मस्जिदें जला दी, 50 मुसलमान मर गए। अब आप, मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया इसको हवा लगाता रहा। मीडिया तो चाहता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आग चली जाए, पाकिस्तान में चली जाए, बांग्लादेश में चले जाए। तो बैलेंस लोग वो होते हैं जो जो अमन की बात करते हैं, जो लोगों को कहते हैं कि यार अपने आप को इन चीजों में मत फंसाओ। जी हम, यार हर आदमी का हक है, लेट हिम लिव। हाँ, कोई ब्रुटैलिटी करता है, कोई गलत कर रहा है, उसके लिए यू हैव ऑल द राइट टू प्रोटेस्ट, उठ के खड़े हों जुल्म जी के जी खिलाफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाके आप खामखा किसी को मारना शुरू कर दें या किसी को तकलीफ दें। तरीके जब होते हैं। ये जी, फातिमा किंग ऑफ नूर पंजाब सलाम वेलकम हो कह गया। रही हैं, हाउ आर यू? किंग ऑफ पंजाब अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। किंग ऑफ पंजाब वालेकुम सलाम। वालेकुम फातिमा अस्सलाम, नूर वालेकुम सलाम। फातिमा नूर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? आपका नाम सबसे अच्छा है, फातिमा नूर इज वन ऑफ द बेस्ट नेम। और आप इस सुभान नाम पे अल्लाह। जरा गौर करें। फातिमा, हमारी बीबी फातिमा के नाम, और नूर, सलाम वाला है, उनका नूर। सलाम वाला है। वालेकुम अस्सलाम। पता है एक बात बताऊं, अस्सलाम नाम का वालेकुम। भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर। सोनी कुड़ी आई है जी। सोनी कुड़ी, आपको बहुत सलाम। अल्लाह ताला आपको और भी सोनी बनाए। अल्लाह ताला मेरी ये छोटी सी सोनी कुड़ी जो बहन है, इसको अल्लाह ताला नूर दे, इसको इसके चेहरे पे ऐसे शाइन हो कि थैंक यू सो मच अंकल अल्लाह जी। इसको करे। अंकल जी कह रहे हैं आपको। जी, नो प्रॉब्लम बेटा। I'm your uncle. Whatever rishta you are going to give me, I'm going to accept it, and that will be an honor for me. हमारा तो असल में भी क्या मतलब आप है सुनाए। कि सोनी कुड़ी मीडिया शर्मा रही मीडिया ने है। बहुत ज्यादा हाय, नुकसान कोई बात किया है नहीं, मैं हमारे भी बहुत। शर्मा रहा हूँ। ये देखो, मैं शर्मा रहा हूँ। ये सोशल मीडिया इसने हमारा बहुत नुकसान किया है, खास करके। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब आप। आप याद रखिए, जब आप गलत बात करते हैं तो फिर आप सोचें कि आपके अंदर अंदर आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक उस वक्त आपको डरना चाहिए, उस वक्त आपको कहना चाहिए कि नहीं यार, आई गॉट अ नेगेटिव थिंग एंड आई हैव टू टेक इट आउट। जी, क्या हुआ? टेल हिम यार। आप क्या कह रही? सैमा इज हियर। कह रहे हैं टेल हिम अच्छा, सैमा इज हियर। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं मैं इनका नाम साइमा? नहीं लेता ना। अच्छा, मेरी तरफ से बहुत सलाम, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, लड्डुओं का पैकेट। हाँ मलिक साहब, कोई अच्छी सी बात सुनाएंगे यार, अच्छी सी बात। बच्चों की बात ये है कि कल जो मैच हुआ है वो फिक्स हुआ था।
चलें सर, कोई बात नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, कोई बात नहीं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कहते हैं कि इन्ना इमाल बिन नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पे होता है, याद रखिएगा। अगर उसके अंदर हमें एज्यूम नहीं करना चाहिए कि उन्होंने गलत किया या सही किया, ठीक है। हमें खेल को खेल की तरह लेना है। लेट हिम, अगर वो हार गए हैं या जीत गए हैं, तो अगर उन्होंने उसके पीछे कोई अच्छी सोच है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत सोच है तो अल्लाह उनको हिदायत दे। और एक बात ये यार, एक मेरा कहने का मतलब है कि खेल को खेलें, जीतने के लिए खेलें, किसी को हराने के लिए मत खेलें। क्योंकि जब आप ये सोच रखते हैं ना कि मैंने इसको हराना है, इसका मतलब है दिस इज अ नेगेटिव, समथिंग इज रॉन्ग। आपका पूरा हक है, पूरी मेहनत करें, जीते, अपने आप को आप मुकद्दर के सिकंदर बने, लेकिन किसी के हाथ के ऊपर पांव रख के मत चढ़े। उस तरह का सिकंदर इज्जत नहीं पाता। हाँ जी बादशाह, आज तू क्यों बोल रहे? तू मेरी जान, क्या बात है, तुझे क्यों चुप लगी हुई है? जमान भाई आसो थोड़ा त्यो नजर है तो गपशप रही जरा, वहीद भाई वैसे भी मुंजी ऑर्डर करनी है। नहीं जमान भाई आज है ना यार, जमान भाई आ, यार बादशाह तू क्या खामोश हो गए? चले गए अपना मलिक साहब? हाँ आ गई है रिक्वेस्ट, एक मिनट। हाँ भाई सॉरी, शुरता ने रोक लिया था मुझे। अच्छा तो सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम कैसे हैं सलाम आप? जमान भाई, ठीक ठाक कैसे है। हैं आप आप? सुनाए जमान भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए आप पीछे कैसे से हैं? डिपर मार दिया, भाई बोल रहा है कि भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई मैं सब तबूक जा रहा हूँ। वो सब बोला खैरियत है कामा, हाँ वो का? मेरे पास कंप्लीट कागजात है, तो बोला ठीक है ओके जाओ। चले माशाल्लाह। अच्छा ये अपना मलिक भाई, ये हमारा हीरो है नीचे, अपना इमदाद भाई हमारे सुपरस्टार है, और जमान भाई हमारे जो है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है। अगर इनके जमान भाई बगैर, अस्सलाम वालेकुम। जमान भाई जैसे लोग होते हैं वालेकुम जिनकी वजह अस्सलाम से अमर हमारे भाई। पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। और सैमा के बारे में क्या कहेंगे? साइमा इज द बेस्ट, एंड साइमा पाकिस्तान का चेहरा है, पाकिस्तान की डिलाइट पिक्चर है, पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज है, पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर है। और सैमा हमाद मेरे भाई ख्याल में कैसे है हैं भी भाई? सही है। जी सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए। जमान भाई आप कहाँ होते हैं? मैं देखो सफर में हूँ, कभी किधर घूमता रहता हूँ। नहीं, कौन सी कंट्री में? कभी मैं इधर कभी पाकिस्तान से उधर हूँ। कभी हाँ इधर उधर। अभी आप पाकिस्तान में हैं? हाँ, मैं पाकिस्तान में हूँ हमाद भाई, तो अहमद आप भाई। ये फिर ये उस वीपीएन के ऊपर चला रहे हैं? हाँ हाँ, जी जी। हाँ क्योंकि वहाँ तो ये ब्लॉक है ना टिकटॉक। है मगर ये वाली तो नहीं है ना पाकिस्तान में, ये तो मैंने दोस्त से ली थी, इंटरनेशनल टिकटॉक जो है, नहीं, लाइव पाकिस्तान में नहीं चलता इंटरनेशनल ना। भी हो तो वीपीएन तो लगाना पड़ता है ना उसके ऊपर, हाँ वीपीएन लगाना पड़ता है, या वीपीएन वहाँ लगाना की इंस्टॉल की हुई टिकटॉक यूज ही नहीं होती। पड़ता। नहीं मेरे तो चल रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप न्यू टिकटॉक वहाँ पे इंस्टॉल करें उसी नंबर से, तो वहाँ चल रही है। ये इंटरनेशनल से मुझे समझ नहीं आई ना आपकी बात। ये जो इमदाद, इमदाद, इंटरनेशनल हाँ जी जी। जैसी नीयतें वैसी मुरादें, जिन लोगों की नीयत अच्छी होती है उनकी हर चीज चल जाती है। इसको मैं क्या समझूं वाहिद भाई? बेटा अगर आप दिन बस में ये कहो कि आज मैंने कुड़ियां बसानी है, मैंने किसी को चकमा देना है, हाँ। फिर यार तो वाहिद जनाब भाई चलती हुई कसम गाड़ी से भी के अंदर, चलती हुई गाड़ी भी रुक जाती है। मैंने हाथ खड़े कर लिए हैं, मुझसे नहीं होती इम्प्रेस। मैंने बहुत कोशिश की है यार, नहीं होती। बल्कि वो आपसे इंप्रेस नहीं होती, आप उनसे डिप्रेस हो जाते हैं, राइट? नहीं वो इसलिए, अब देखो ये सैमा है ना, इसको मैंने पहले ही सिस्टर बोल दिया। क्यों? ये मुझे खतरनाक लग रही थी। बेटा डरपोक इंसान, मोहब्बत का इजहार नहीं किया, एकदम हाथ उठा दिए।
बेटा हाँ मैंने आखिरी उसको देखा, बंदे ये को शीशा पी रही मुसलमान थी। पता नहीं बैठी ये गालियां देगी। मुसलमान 3 ट्राइयां मारता है बेटा। नहीं मैं एक ही ट्राई पहले देखता हूँ ना लड़की को। पहले खाटी पकड़ता है, सुन, पहले नहीं खाटी पकड़ता है, फिर उसके बाद ना पैर पकड़ता है, मैं ठीक है, लड़की उसके देखता बाद हूँ लवा ना, हो जाता है। मैं भाई मैं लड़की देखता हूँ ना, अगर मैं देखता हूँ सीधी सादी है, ठीक है बात तो उसकी नहीं भाई, अगर कोई बैठा है सॉरी कोई गलत मत समझना, मैं और आजाद की बहुत बेटा तू रिस्पेक्ट कह करता भी हूँ। रहा है, फिर कह भी रहा है, गलत नहीं समझना। वही बात सुन, जब तू इतना बेशर्म हो ही गया तो बता दे इनको तुझे यार मोहब्बत है। कुछ गलत वहीद ना भाई लिखे वहीद ना। भाई अब निकलने नहीं देंगे इसको ना। अब नहीं निकलने ये देंगे परसों इसको। इन्होंने मेरी ऐसी क्लास ली है मेरी लाइफ के ऊपर कि मुझे वहां पे भागना पड़ा लाइफ ऑफ करके। मुझे परसों फंसाने लगे, मेरा जिम का टाइम है, भागा, मैं कहा मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं भाग। अभी तो वाहिद भाई खामोश रहते हैं, जब ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाए ना बस फिर बंदे का काम हो जाता है। नहीं बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तरह कहते हैं कि यार हमारे पास अल्फाज ही तो हैं जिनका हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ले- हमें तो यकीन माने नहीं, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मसला ये होता है कि ये अल्फाज ही होते हैं एक दूसरे के दरमियान में मोहब्बत पैदा करते हैं, एक दूसरे के जी दरमियान में नफरत पैदा करते हैं, जी और किसी को आपसे दूर ले जाते हैं, किसी को आपके नजदीक ले आते हैं। तो अपने अल्फाजों का चुनाव जरूर अच्छा करना चाहिए। हाँ जी वहीद भाई आपके बिल्कुल पास ठीक। तजर्बा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तजर्बा माशाल्लाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तजर्बा इससे मैं छोटा सा तजर्बा, परसों का तजर्बा मैं आपको बता देता हूँ। मेरी बेगम आई और गुस्से के साथ मुझे कहती हैं, खाने पे खाना लगाओ, टेबल पे खाना लगा हुआ है, आपको आवाजें दे रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और ये है वो है, और आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा यार तुम कितना खूबसूरत बोलती हो यार, वाओ। अच्छा ये यार ये बीवी की भी तारीफ करते हो इस तरह से? वहीद भाई बेटा वैसे ही क्यों गुड नहीं पर्सन करता, है, बेटा घर में बहुत नहीं गुड रहना, पर्सन। नहीं घर पे। दिल से कर रहे थे या मैं घबरा दिल के? से करता हूँ भाई, मैं दिल से करता हूँ। एक बात याद रखें, सबसे पहले अगर आपने मोहब्बत करनी है तो अपने घर वालों से करें। हाँ ये तो बाहर बिल्कुल बिल्कुल। वाले बिल्कुल। लोगों की अगर आप बाहर वाले लोगों से मोहब्बत नहीं करेंगे, ये तो आपको ठुड्डा मार देंगे, लेकिन घर वाले तो आप नहीं सख्त पे कहेंगे, वो आपको ठुड्डा नहीं मारेंगे। बिल्कुल आप नहीं राइट मेरा अभी राइट। आप बहुत ना वैसे इस है लाइफ के आजाद ऊपर के कोई साथ। गलत बात करें, आपको इतने अच्छे क्या नाम है लकब से नवाजा जाएगा। आप एक गलत बात करें, आपको 10 बातें सुना के जाएंगे लोग, हाँ लेकिन घर में आप बिल्कुल। गलत बात भी करेंगे तो वो कहेंगे नहीं यार ऐसा डब है, कोई गल नहीं, डब खड़ब है लेकिन अब है तो अब्बा है। नहीं भाई आपके सब आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बात कर किंग रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। किंग क्या हाल है किंग? ठीक। किंग अस्सलाम वालेकुम, यू आर द किंग मैन। वहीद भाई कल किधर थे जो आपने मूवियां डाली हुई, किधर थे, ढोल शोल बज रहे थे? कल मैं वो गया हुआ था, दिवाली थी यहाँ पे, हमारे हिंदू भाई हैं उनका दिवाली थी, तो वहां चला गया था। अच्छा 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 तो वो अच्छा। बस वो होता है सर, देखें ये मैं तो जहाँ पे भी ढोलकी भाई बज रही हूँ, मैं वहां जाकर डांस करना शुरू कर देता हूँ। अच्छी बात है, मोहब्बत करनी चाहिए वाहिद भाई, ये तो आप बहुत अच्छा करते हैं। तो नहीं कल कहते हैं वहीद ना, भाई ने वो मूवियां बनाई ना, बहुत अच्छी थी। जमान हाँ भाई आप क्या करते हैं? मैं चावल का काम है हमारा। चावल का चावल का। एक्सपोर्ट या इधर ही एक बात पाकिस्तान में बताओ, या बाहर भी भेजते हैं? बाहर भी जाता है, पाकिस्तान में भी, हर जगह अच्छा चलता है। अच्छा माशाल्लाह इमदाद माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। इमदाद एक दिन नौकरी पे ना जाए ना, जमान भाई एक दिन ना जाए, जाके सो जाए ना, उस दिन किसी के घर में चावल नहीं पकता बेटा। यार भाई मैंने तो सोच लिया मैं वहां जाके रेस्टोरेंट खोलना है मैंने। हेलो यार शहजादे, वाकई लेकिन वालेकुम अपने बहुत सलाम जी, जबरदस्त। कैसे हैं होटल आप? का नाम क्या रखना है, होटल का नाम मैं बता देता हूँ, हाँ जी बताओ। बता देता हूँ। बुशरा रखना है अपने मैंने, बुशरा रेस्टोरेंट। नहीं, अपने होटल का नाम रखना माँ जी होटल। देखो माँ हम जी, दुनिया में सब हाँ यार माँ बहुत जी, क्यूट नाम है, कसम माँ से जी, बहुत क्यूट नाम है, वाह क्योंकि हम सुपर लोग नाम है देखिए, यार। अल्लाह, हमारे अल्लाह जी और हमारे नबी पाक के बाद जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो हमारी माँ है, और कसम हमने अपनी खुदा की माँ के यार नाम ये से ना कोई अस्पताल बनाया है, ना कोई स्कूल बनाया है, ना कुछ बनाया, ना किसी रोड का नाम रखा है। यार किसी स्कूल का नाम होना चाहिए, माँ जी सेकेंडरी स्कूल, आई लव यू माँ जी वाहिद भाई, हॉस्पिटल, वाह पक्का वाह माँ हो जी गया रोड। कसम से।
Very पक्का हो गया। वाह जी बल्कि वाह। मैं जो भी काम करूंगा ना, कसम खुदा की मैं ये नाम रखूंगा, मैं एग्री, आई लव यू वाहिद भाई, कमाल का नाम है यार, कमाल का नहीं, मैं बरकत बता वाला रहा हूँ, नाम। कहते हैं, कहते हैं जो माँ बाप के पाँव पकड़ता है उसकी पूरा जमाना उसके पाँव पकड़ता है, ये इसमें तो याद कोई रखना शक बेटा। नहीं है यार, वाकई माँ तो एक बहुत प्यारा। ऐसी चीज है ना, मैं समझता हूँ अगर वो बदनसीब इंसान होगा जो अपनी माँ का दिल दुखाएगा, कसम खुदा की। बिल्कुल। अगर लोग दुआ करें चार हमारी पैसे माएँ आने के सलामत बावजूद, मैंने रहें, लोगों को हमारी देखा बीमार है, माएँ सेहतमंद हों। मैंने काफी लोगों को देखा है, थोड़ा सा कल्चर अच्छा हो जाए, माहौल घर का अच्छा हो जाए, ऐसे बास्टर्ड लोग हैं, लानत भेजता हूँ मैं ऐसे लोगों के ऊपर जो अपनी माँ को ना इग्नोर करते हैं कि जी अभी ये आप कहाँ थूक रहे हैं, ये आपका वो बाथरूम है। बहुत दुख लगता है, और वो बंदा, अब मैं क्या कहूँ यार, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, इमदाद, बहुत अफसोस इमदाद, वाली बात है। इमदाद, ये जिंदगी का टाइम पीरियड जो होता है ना बहुत कम होता है बेटा। हाँ और बिल्कुल। इंसान जो एक्ट करता है, जो हाँ सोच रखता है, हाँ हम ये कहते हैं कि इसका इसका हमें रिवॉर्ड, इसका वो नहीं मिलेगा, इसका सिला मिलता है। अगर आप बुरा करते हैं तो बुरा होता है, हाँ अच्छा यार, करोगे तो मैं अच्छा उस होगा। दिन कितना एवरी डिप्रेशन में था। सिंगल मोमेंट एज अ मलिक मुसलमान, जवेद, आई लव यू हेलो, ब्रदर, थैंक यू सो मच। एक कंधे पे आपका वालेकुम फरिश्ता बैठा अस्सलाम। आपकी अच्छाइयां लिख रहा है, और एक कंधे पे एक फरिश्ता आपकी गलत चीजें लिख रहा है। तो जी जब आप अच्छी चीज लिखते हैं तो जब वो अच्छा फरिश्ता अच्छी चीज लिखता है तो क्या होता है, इस तरफ का दूसरा फरिश्ता एक बुराई आपकी मिटा देता है। तो हम्म, अल्लाह ताला ने तो हमें इतनी बिल्कुल छूट दी हुई है यार। हाँ बिल्कुल 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 तो बिल्कुल ठीक कह रहे इसके हैं बाद भी अगर ये। मलिक जी, जवेद हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, अल्लाह इनको सलामत रखे वाहिद भाई, लवली मैन। क्या मैं अस्सलाम मलिक साहब की आपको तारीफ करूं, ये मलिक जवेद आए हुए हैं जतियाल साहब यहाँ, ये ठेकेदार है अस्सलाम सऊदी वालेकुम अरबिया मलिक में। जावेद साहब, हमारी तरफ से प्यार है, सलाम है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपको माशाल्लाह, जिंदगी दे, बहुत अल्लाह अच्छा आपको काम है इनका। यहाँ खुश ये बिल्डिंग का रखे। काम करते हैं, इनके पास तकरीबन बहुत अच्छी खासी लेबर है, और अल्लाह माशाल्लाह इनको देता माशाल्लाह। है, और अल्लाह के सदके फिर ये लोगों को तकसीम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, वाह वाह, नसीब की बात बहुत है। बड़ी जावेद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह जावेद भाई मेरे माशाल्लाह। भाई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं अमेरिका में, छोटे भाई शाहीन, और उन लोगों के घर बनाते हैं, बड़े खूबसूरत घर करते हैं। बस कंस्ट्रक्शन में एक चीज वहीद का भाई, खास ख्याल रखते ये वो हैं, एक ख्याल इंसान रखते हैं। है, ये वो इंसान है कि सबको ना, मैं इसकी आपको मोहब्बत क्या बताऊं, कसम खुदा की, ये मैं क्या बोलूं, ये इसका 20-25 हजार रियाल ना, ये खाली लोगों को डैमेज देने में लग जाता है, जो भी जाता है आज मेरा मैच है मलिक भाई आज है, बेचारा अभी अपसेट हो गया, परेशान हो गया, क्या करूं। जब आप परेशान होते हैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ा करें और वेरी अल्लाह से गुड। मांगे करें। हमें इंसान कोई कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह हाँ से मांगे। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज अब सारे बहन भाइयों से कहता हूँ, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी सांसें, हमारा हर कुछ, हमारे बच्चे, ये सब अल्लाह जी के हैं। तो बेशक बेशक आप बेशक। हमेशा अपने आसमान की तरफ आप हाथ उठाएं और कहें कि अल्लाह जी आज मैंने भिंडियां खानी है। आप बिलीव नहीं, शाम को आप भिंडियां खा रहे होंगे, आपने बिल्कुल कहना है अल्लाह अल्लाह ताला आज मैंने देते हैं। चिकन खाना है, करें। देखिए, अपना अपना रिश्ता अपने खालिक हकीकी के साथ प्योर रखें, जिस तरह कहते हैं ना, नफीस रखें, कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आप लोगों में से सबसे खराब हूँ, मैं सच में, मैं गुनहगार आदमी हूँ, बट मेरा बिलीव ये है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मुझे अच्छा, काम ये जो अच्छा लगता है, मैं वाहिद काम भाई, करता हूँ, एंड ऑफ द डे रिस्क मेरे घर में आता है। ये जो विर्द आप कह रहे हैं, ये मेरे माशाल्लाह। लिए काम आएगा ना, जो चीज मैं हासिल करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह। नहीं, एक बेटा, एक बात याद रखना, याद रखो, जिस चीज की नीयत अच्छी हो ना, हाँ वो जरूर होती है। वालेकुम अस्सलाम। एक मैं वाकया सुना देता हूँ, एक छोटा सा वाकया, राउफ, प्लीज सुनिए। राफे, वेलकम, वालेकुम सलाम। एक आदमी ने दूसरे शहर जाना था, उसकी फ्लाइट थी, जहाज पे उसने जाना था, और हाँ मौसम बहुत खराब था, और उसकी दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी जगह पे कॉन्फ्रेंस थी। तो क्या ओके हुआ कि जहाज उस दिन मौसम की वजह से कैंसिल हो गई सारी फ्लाइटें। ओके। तो बड़ा परेशान बैठा हुआ है, तो वहां पे एक टैक्सी ड्राइवर था, तो उसने कहा कि जैन सर एक कार्ड, काम करते हैं, एक काम करते हैं कि मैं आपको ड्राइव करके लेके जाता हूँ
स्पीड के साथ जाऊंगा और आपको एटलीस्ट मैं उस शहर के करीब ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये रात आपकी यहाँ पे सफर में गुजरेगी। तो क्या हुआ कि वो सफर में उन्होंने सफर किया तो पहाड़ों के अंदर से जा रहे हैं और मौसम बहुत खराब है, और इतना मौसम खराब है कि आगे नजर नहीं आ रहा। तो ओके ड्राइवर ने कहा कि सर अगर हम लोग आगे गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए जब तक ये तूफान जाता नहीं है हम गाड़ी को साइड पे रोक लेते हैं। तो उन्होंने साइड पे गाड़ी रोकी तो पास ही छोटा सा घर था, तो उन्होंने कहा कि घर के अंदर ही गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से सिर्फ एक आवाज आई कि आप आ जाएं। तो वो अंदर गए, तो अभी वहां बैठे हैं, तो उन्होंने कहा बेटा, एक बूढ़ी खातून थी, तो कहने लगी कि आप 2 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, मैं अपनी नमाज खत्म कर। तो बूढ़ी खातून नमाज पढ़ रही थी, तो ये साहब घर में इधर उधर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा एक नौजवान बच्चा जो है वो एक बिस्तर पे लेटा हुआ है, मेरे ख्याल से वो बीमार था। तो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि चल खैर, उन्होंने नमाज पढ़ी, उन्होंने उनको चाय दी, उसके बाद पूछा बेटा क्या बात है। उन्होंने कहा माँ जी वो मौसम बहुत खराब है तो हमने इसलिए गाड़ी रोकी, आपकी तबीयत बहुत नाजुक है, आपको डर हो गया। आप अकेली रहती हैं? कहती नहीं, यहाँ पे मेरा पोता रहता है। तो कहता आपके पोते को क्या हुआ है? कहती ये बहुत बीमार है, इसको इसका नर्वस सिस्टम का मसला है। तो कहती है माँ जी आप क्या दुआ मांगती रहती हैं? कहती है बेटा मैं दुआ मांगती हूँ, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, उसका नाम है डॉक्टर इजाज, और वो दुबई में और या फलाने शहर में या बहुत बड़ा डॉक्टर है वहां पे, और मैं अक्सर ये कहता हूँ मुझे लोगों ने बताया वो इसका इलाज करे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं गरीब हूँ, जा नहीं सकती उसके पास, लेकिन मैं अपने अल्लाह से रोजाना कहता हूँ कि मेरे बेटे का इलाज करे तो सिर्फ डॉक्टर इजाज करे। तो बंदा कहता है कि माँ जी मैं डॉक्टर इजाज हूँ। सुबह बताएं, देखें अल्लाह ने कहां से कहां तक दुआओं का असर, माँ की दुआओं का असर, जहाँ पे जब वो अर्श मोहल्ला पे जाती है तो ऐसे जाती है, तूफान की तरह जाती है मेरे जान। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो ना कहते हैं ईमान, कहाँ इसको वो कहते हैं सफर। तकवा, इसको कहते जी हैं वो बिल्कुल। जस्तजू। या मरहबा, हला वला या हबीबी। वाहिद तो भाई, जी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। चलें, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी एंट्री अपना करवा लूँ ख्याल रखो, अंदर। मिजाज मेरी किसी बात का बुरा मत बनाना। उसका भाई अभी तक बैठा हुआ है, अभी तक तूने हाँ या ना नहीं किया बेटा। किसका भाई हेलो वाहिद भाई? वो कल कल तुझे दिखाया नहीं था यार उस चीज की बहन से तेरा रिश्ता होना है यार। हाँ, प्लीज कसम से अब इन लोगों को मत बताना जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं बस मैं वो नहीं मुझे बताऊंगा, रिश्ता, तू खुद बताएगा, हाँ बस खुद बताएगा। उस बंदे की तूने आपने खुद पता तस्वीर तूने बेटा खुद तस्वीर पतासे बांटे हैं, हमारा क्या कसूर है? हम तो खाने वाले हैं, ओए हम हाँ तीली बस लगाने वाले हैं बेटा, तीली। नहीं वो ठीक है, लेकिन उसकी तस्वीर प्लीज कभी मत दिखाइएगा किसी को। नहीं लड़की की नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसके भाई की तो दिखाऊंगा ना, ताकि लोगों को पता चले यार। हाँ चले ठीक है। बस लड़की मुझे भी मत दिखाना, अल्लाह करे वो मुझे कभी ना मिले। अबे उसके इतना बड़ा वो होंठ है तो कि तेरा पूरा मुंह उसके नीचे आ सकता है। मैं यही कह रहा हूँ ना भाई कि अच्छा मैं ये बता दूं, ये बेटा भाई का नाम यू आर गोइंग टू गेट अ सुपर पपी। इससे इतनी बड़ी पपी किसी को नहीं मिली होगी, तुझे कसम पपी खुदा मिलेगी। की, इसमें कोई शक नहीं है वाहिद भाई। इतना बड़ी पप्पी पूरे साल के लिए काफी है, बंदा हाँ मुंह ही ना करे दोबारा उसको देखने के लिए। बस ये है कि तुझे ना लिपस्टिक का ड्रम लेना पड़ेगा, उसके होंठ बड़े हैं ना, तुझे मतलब कूची के साथ उसके। चल कोई नहीं यार, चल जा हाँ इमदाद। ये सही कह रहे, नहीं आप सही कह रहे हैं, वाकई में ऐसा करना पड़ेगा। तकरीबन एक पूरा जो कॉस्मेटिक की शॉप है ना, उनकी पूरी लिपस्टिक मुझे एक ड्रम में डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसको मैंने लगाना है ना कुची में मिक्स करके। सॉरी भाई, ये सुबह उठा हूं तो बस हाल अजीब, हाल बेहाल हुआ है।
नहीं यार, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ वाहिद भाई, कसम से यार, शादी करता हूँ, सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चल तेरी शादी कराते हैं बेटा, तेरी शादी कराते हैं, एक देसी लड़की से लड़की अच्छी कराओ यार। बात है, खूबसूरत सी अच्छी लड़की की बात है। शादी कराते हैं। नहीं, खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। बेटा इस शादी के अंदर सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ, औरत को चले। दो चीज औरत को दो चीजें चाहिए होती हैं, वाह इज्जत मरियम बहुत सलाम। चौधरी और केयर, वेलकम हो गया। और केयर होती है, और बस अच्छा, इज्जत ये का। मरियम आप अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। वालेकुम सलाम मरियम वालेकुम चौधरी। अस्सलाम मरियम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत तारीफ करते हैं, ये भी मरियम चौधरी भी आपकी। जी शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। आप नहीं जानते? जानता हूँ, मैं जानता हूँ उन्हें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो आपके फ्रेंड है। जी उस मेरी दिन फ्रेंड है। मेरे लाइफ पे आए हुए थे, और कह रहे थे कि मैंने इनसे कहा कि आप कहाँ से हैं, तो कहा आप वाहिद भाई को जानते हैं। मैंने कहा जी, मेरे बिग ब्रदर हैं। तो कह रहे थे कि जी मैं उनके दोस्त हूँ। जी जी बिल्कुल, इनकी बुटीक है, ये कपड़े की एक बुटीक चलाती हैं शिकागो में, और दुआ करें इनका माशाल्लाह कारोबार अल्लाह ताला इस माशाल्लाह पे चलाए। माशाल्लाह। नहीं, इन्होंने खुद भी बहुत अच्छे ड्रेस पहने वैद होते भाई, हैं। कारोबार जब ज़ाहिर बात है अल्लाह से दुआ की जाए तो कारोबार में अल्लाह जरूर बरकत डालता है। आमीन हेलो, आमीन। हाय जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ये हमारी अस्सलाम दोस्त आई हैं। वालेकुम। अच्छा, हाय हाउ आर यू? यार वाहिद भाई, ये लड़कियों को बंदा इम्प्रेस कैसे करे, थोड़ा यार गाइड करो। वैद भाई बेटा ये ना फिसल, वैद भाई ये फिसल जाता जेब है, ढीला करे, बार बार फिसल। जेब, भाई बेटा इसकी जेब तरह ढीला थोड़ी। करे, जेब। जेब ढीला करे। वो को 2 कनाल, 2 कनाल का प्लाट उसके नाम पे लगा दे। और बात नहीं, सुन, इम्प्रेस करने के लिए बीवी से लड़की ज्यादा, को 2 ओए, कनाल का तू प्लॉट। बीवी से ज्यादा बीवी की माँ के लिए तोहफे खरीद तू। इमदाद, मैं नहीं, ठीक हूँ। अच्छा, आप यार ठीक है? मेरी दुआ है अमाद आप भाई, ठीक रहें। हाँ। अमाद भाई पता क्या बात है अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे कि हैं बात आप? यह है कि इमदाद भाई जब कैसे हो? जी ठीक हूँ मैं। अली हमजा। जी जब जी, है ना अली जमान भाई। हमजा जब आप किसी को अच्छे लगेंगे ना तो आपको पता भी हाँ नहीं चलना, खुद ब खुद वो आपके साथ जो है ना अंडरस्टैंडिंग में, सिस्टम में आ जाएगा। बात दिल की होती है, बकाया पैसे पूसों से तो सारे काम, हाँ हाँ, पैसों से सारे मसले हल नहीं होते। लोगों के पास कैसे हैं बहुत आप पैसे भाई नहीं, हैं, साहब? पैसों से ही। ओए, इमदाद, इमदाद मैं तुम्हें एक हाँ सच्चा वाक्य सुनाता हूँ। मैं एक शादी के हाँ अंदर गया, मैं शादी के हाँ अंदर हो रहा था, यहाँ पे शादी थी। तो शादी के अंदर गया, तो शादी के अंदर ना जिस वक्त वो उसका निकाह होने वाला था, तो वहां पे वो कबूल है कबूल, जब कहने का टाइम आया तो उस पे लड़का खड़ा हो गया। उसने कहा जी आपने मेरी ये डिमांड नहीं पूरी की है, तो मैं तो हाँ नहीं बोलूंगा। वो क्या हुआ हाँ। कि उसके अंदर वो लड़की का जो भाई था उसने उसका गिरबान पकड़ लिया, इनकी लड़ाई हो गई। अब सारे के अच्छा। सारा जनाब लोग बैठे हुए हैं, 400 लोग बैठे हैं, उसके दरमियान में उनका मामला हल नहीं हो रहा है। तो मैं हाँ। हिम्मत करके आगे गया, मैं कहा सर ये 2 मिनट तक अगर हाँ नहीं बोलता है ना तो मैं, मुझे कबूल है, मैं इससे शादी कर रहा हूँ। नहीं यार, कसम कसम अबे से। से। ये सुनाइए भाई, भाई ने पहले ही बात सुनाई नहीं ऐसे ही भाई है। भाई, तो आप क्या कहते हो कि मैं हर मॉल में पहुंच जाया करूं जहां इस तरह का हाँ, मसला लेकिन हो? बेटा जरा एक काम करना, प्रोटेक्शन शील्ड पहन के जाना, ऐसे पूरा। मैं यार समझ गया हूँ, मैं समझ गया मैंने, हूँ भाई भाई, हाँ, मैं समझ गया हूँ, बस आगे मत बताए, अच्छा मैं नहीं, समझ गया हूँ। एक और बात सुना देता हूँ जमान भाई, सुने 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 सुने। जी 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 ये जी। जो ये जो इमदाद भाई है ना, ये अपने इलाके के पॉलिटिशियन है, अच्छा, सियासी रहनुमा है। हाँ, वाह भाई वाह। एक दिन क्या हुआ कि ये एक जलसे में गए, हम्म। तो वापस आए तो इनको देखा, इनको इनकी सही फेंटा लगा हुआ था, तो सोनशी सोन फेरे हुए थे, मुंह पे भी निशान था। तो मैंने कहा यार हाँ। इमदाद, तुमने तो कोई गलत बात तो तू करता नहीं है, तू अच्छा आदमी है। कहता है "तो ये वाक्य किस तरह हुआ है?" कहता है भाई भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं वहां गया, स्टेज पे लोगों ने बुलाया, मैं तकरीर करने के लिए, जैसी माइक को मैंने पकड़ा तो माइक के करंट अंदर था ना? करंट था, माइक के अंदर करंट था। तो मैंने कहा उल्लू के पट्टे, उल्लू के पट्टो। कहता है फिर ना पूछे, फिर तो क्या हुआ? वाद भाई, वाद भाई, आप मुझे एक बात बताएं, जब आप बात कर नहीं, रहे हो और अचानक दुबई आपका वाला हाथ वाक्य उस सुना, करंट पे लगे, मैं नहीं तो बताऊं, क्या दुबई वाला निकले? वाक्य सुना देता हूँ, दुबई वाला वाक्य सुना देता हूँ। हम्म। दुबई में ना, ये अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था किसी ट्रेन के अंदर,
जी अस्सलाम अच्छा वालेकुम। किसके बच्चे हम्म चाय का वो थैंक आज यू वेरी सारी बातें बताए, मच। आज हाँ आप मेरी सारी बातें नहीं, बताएं, जितना सुन ले, लड़कियां आई हैं ना, आज मेरा सारा हाँ खुल के नहीं बताओ। सुन ले बेटा। देखिए क्या हुआ कि अपने दोस्त के साथ हाँ ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में जैसे ही ये ट्रेन के अंदर जाने लगे तो इसने जमीन से कोई चीज उठाई और जेब में हाथ डाल दिया। हाँ सच है। तो खैर ये अंदर गया तो उसके दोस्त ने कहा कि यार इमदाद तूने तुझे क्या मिला है? कहता यार तुझको कुछ नहीं मिला, चुप करो। कहता सच बता, कोई गोल्ड मिला है? कहता नहीं। कोई हीरा मिला है? कहता नहीं। और कोई पैसे मिले हैं? कहता नहीं। कहता फिर क्या मिला है? कहता यार छोड़ यार, लोग थूकते भी ऐसे हैं जैसे चुन्नी ठन्नी पड़ी हो। एक और बात भी बताएं मेरी, प्लीज। ये सच है, ये सच है, हाँ सही है। नहीं, मैं दुबई की दोस्तों के साथ वो बिल्डिंग थोड़ा मजाक करता हूँ, वाहिद भाई जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। दुबई में एक बिल्डिंग के ऊपर था, 40वीं मंजिल पे था। तो वहां से खिड़की में खड़ा होकर नीचे देखता है और देखता है कि रोड के दरमियान में ना कोई 4 आने पड़े हुए हैं। इसने जल्दी से ना उसे कहा इससे पहले कोई उठा ले, मैं नीचे जाता हूँ ना। ये जब 10वीं मंजिल पे आया ना, तो 20वीं मंजिल पे आया तो उसने दोबारा उसके अंदर से देखा ना कि कहीं उठा के तो नहीं ले गया। इसने दोबारा देखा, उसने कहा उई, ये तो चुन्नी नहीं पड़ी हुई, ये तो अठन्नी पड़ी हुई है। अठन्नी पड़ी हुई, हाँ। और फिर नीचे क्या, जब 10वीं मंजिल पे पहुंचे इसने कहा दोबारा चेक करते हैं। देखा तो उसने कहा देखा अठन्नी नहीं बल्कि वो बड़ा वाला रुपया पड़ा हुआ था। रुपया, यस। जो हाँ, खैर जी, तो जब नीचे आया तो देखा बड़ा परेशान था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता यार नीचे पहुंचा हूं तो पता चले वो डकर का गटर का ढकना था। यार वाहिद भाई कहाँ से बनाते हो बातें यार, कसम खुदा की। Who is your life? अच्छा पता है क्या हुआ, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। परसों हबीब भाई लाइव पे आए और इन्होंने मेरी लाइव में कहा कि यार इमदाद तुझे पता है तू कितना अपसेट था, इमरान भाई तुझे ना दिलासा दे रहे थे। मुझे सब कह रहे हैं यार तुम्हारी इमरान खान से मुलाकात हुई। मैंने कहा हाँ क्यों, क्या हुआ? कह रहे यार वो वहीद भाई बता रहे थे ना कि आपको चोट लगी तो वहीद इमरान खान आपको चूम रहे थे। मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है वाहिद भाई की बातों पे यकीन मत किया करो, लाइफ की बातों पे। मुझे कभी इमरान खान ने हाथ तक, क्या मैंने इमरान खान को कभी लाइफ में रियल में नहीं देखा है। नहीं, ये बहुत बहादुर है। पता है क्यों? इतना हाँ जमान भाई, क्या हुआ कि वो आ, एक जगह पे ना वो देखा कि दरिया में अच्छा कोई आदमी क्यों? दरिया में एक आदमी डूब रहा है। तो पता है सब कोई भी दरिया में उसको बचाने नहीं जा रहा था। खैर जी देखा एकदम से छलांग मारी। जब हमने गौर से देखा तो इमदाद भाई थे। खैर जी गए वो बंदे को बाहर लेके आए। तो हाँ सब लोग ने कहा जी अच्छा इमदाद साहब हाँ। आपने बड़ा अच्छा काम किया है। कहता हम्म। ओए अच्छे काम को गोली मारो, धिक्का किसने दिया था मुझे? वो मैं मुमताज देख रहा भाई था ना। आज आज सही काबू आए हैं तुझी, आई आज सही लव काबू वाहिद आए। भाई। वाहिद भाई इतने सच्चे मोहब्बत करते हैं ना। थैंक यू, आप देखे ना इनके बातें, देखें आप कितना मासूम बातें बहुत होती है वाहिद भाई की। आई लव यू वाहिद बहुत भाई, कसम बहुत खुदा बहुत की। अच्छी बात है, आई लव बहुत यू। ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। बहुत ही प्यारे, इसमें कोई शक नहीं है। वाहिद भाई की जितनी तारीफ कीजिए बहुत कम है, नहीं इनके लिए यार कोई खुश अल्फाज रहो, नहीं है। बस दुआ ये किया कर अल्लाह ताला हमें बंदे का पुत्र बढ़ावे, सही बढ़ावे, नहीं पुट्ठे यार काम आप ना बंदे कर। दे पुत्र हैं यार वाहिद भाई, कसम से। हम अल्लाह क्या ताला करते हैं आपको यार, हम तो हमेशा किसी खुश का। और से तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन सब आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वाहिद भाई। लिफी कह वालेकुम रहे हैं जी, सलाम। नहीं, राइट कह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, बस में जा रहे एक मोटा सा आदमी है, उसको जाके पता है क्या कहते हैं? इमदाद, हम्म, हम्म, ओए मैं तुम्हें कह रहा हूं धिक्का नहीं दो, धिक्का नहीं दो, धिक्का नहीं दो, क्यों धिक्के मरियम देते हो? मरियम चौधरी मेरे साथ थी उस बस में, वो गवाह है इस बात की, पूछ ले आप। कहता है ओए मैंने तुमको कहा है धिक्का मत दो, धिक्का मत दो, धिक्का मत दो। तो हाँ मोटा आदमी आगे से कहता है भाईजान मैं धिक्का नहीं दे रहा, सांस ले रहा हूं। उसने यार वाहिद भाई, ऐसा ऐसा होता है वैसे। क्यों नहीं होता हाँ धिक्का? हाँ
होता है, अक्सर होता है ऐसे। और यार ये जो कुछ दिन पहले ना मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया कि यार मेरा एक मेहमान है, आप उसको लेके जाए। मैं बुराई नहीं कर रहा, आई एम सॉरी, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं ना इस बात को गलत कह रहा हूँ। वो बहुत मोटा था, और इमरान वाहिद भाई वो रात को जब सो रहा था ना, तो आप यकीन करें मुझे डर लग रहा था। वो इस तरह से खराटे मार रहा था कि मैं फिर जाके अपनी गाड़ी का एसी ऑन करके हल्के से वो शीशे नीचे करके गाड़ी में जाके सोया हूँ। यार ये तुम्हें ऐसा पता क्यों? तुम्हें पता है दूध वाला शादी क्यों नहीं करता? क्या मतलब दूध वाला शादी नहीं जो करता? पाकिस्तान में हर जगह पे जो दूध वाले होते हैं, जो दूध बेचते हैं, सुबह घर हाँ में हाँ। जो घरों में जाके दूध दे के आते हैं, ये शादी वो क्यों नहीं शादी करते? नहीं करते? नहीं नहीं करते हैं नहीं, भाई शादी नहीं भाई। करते। यार नहीं खुदा का सुनिए, नाम लो, 10-10 तो बच्चे हैं सुन तो लो उनके। ना यार, पूछो तो सही क्यों नहीं करते? अच्छा अच्छा चलें, क्यों नहीं क्यों नहीं करते? करते? क्योंकि उन्होंने सारी खवातीन को बगैर मेकअप के देखा होता है। अच्छा वहीद भाई हाँ, वो ना मैं क्योंकि आपको सुबह बात सुबह सुनाता हूँ। सुबह सुबह वो नोक करते हैं ना, तो हाँ मैं तो औरत की भाई बिल्कुल इस तरह से बात नहीं करूंगा, सॉरी, आई नहीं भाई, रिस्पेक्ट वुमेन। मैं दूध हाँ की बात से एक बात याद आ गई, बात ये सच्ची है। वो एक ना दूध वाला ना दूध देख के आया घर में, तो जब उन्होंने उबालने के लिए रखा ना, तो उसमें से मेंढक का बच्चा निकला है। अच्छा वो कल दूध देने वाला आया, उसने कहा वे भाई, कहता हाँ, कहता कल तेरे दो जो मेंढकी ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ, मेंढक ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, हाथी ਦਾ थोड़ी अच्छा वाहिद भाई, नहीं सॉरी जमान भाई, वाहिद भाई जी जी। मुझे ना ये क्या नाम है, जुनैद अनवर भाई से मैं नाराज हूँ। वही जुनेद से कोई क्यों? नाराज होता है? ऐसे गोल मटोल आपको इंसान के साथ तो कोई नाराज हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, इन्होंने मुझे 2 बार फॉलो किया, मैंने इनको फॉलो बैक दिया, फिर इन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, इनसे कहें कि ये नीचे मैसेज में आए या कॉल पे आए, इनसे आप बात करें। जुनेद भाई का मैं बता देता हूँ उन्होंने अनफॉलो क्यों किया। वो देखते हैं कि वो देखते हैं कि जैसी लड़कियां तुम्हें अनफॉलो करती है ना, तो ये लड़कियों को वो करते हैं। जब वो लड़कियां अनफॉलो करती है, ये भी अनफॉलो कर देते हैं। उनके ये साथ ही आप चले जाते हैं। ये आप सच कह रहे हैं? हाँ यार, तू देख, कोई ना कोई देख, बात सुन, ये नहीं तू आंखों से गोली मारता है बेटा। अमदाद नहीं, भाई, एक हाँ, एक पतंग कटती है ना, तो आगे जो पतंग होती है ना, उसके ऊपर डोर पड़ती है, तो वो उसको भी साथ ले जाती है। नहीं, मैं मुझे ना इस बात से वो मैं परेशान था कि मुझसे पता नहीं कोई गलती हुई है कि ना जुनैद भाई ने मुझे क्यों अनफॉलो किया। इस बात से वो मुझे हो रहा था कि मैंने तो कभी बदतमीजी भी नहीं की, ना नहीं मैं कोई तूने इस टॉपिक पे। इसीलिए तो अनफॉलो किया कि तूने बदतमीजी नहीं की, क्योंकि जुनेद भाई कहते हैं कोई ना कोई बदतमीजी करे मेरे साथ। चले, आई लव अच्छा यू सुन, जुनैद भाई। अच्छा अच्छा सुन, एक वाकया सुनाता हूँ, सच्चा है, हाँ, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। अमेरिका में एक दफा मेरे अब्बू आए हुए थे, यहाँ पे वालिद साहब आए हुए थे, तो हम लोग खाना खा रहे ओके, थे। तो ओके। सामने टेबल पे खाना पड़ा हुआ था, तो अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये कह रही हैं मरियम चौधरी, वाहिद साहब कॉल करना, या आप जी इनको जी, ले लें। ये मैं पूछे जरूर, लाइव पे आना चाह रहे हैं या आपसे ये एक, प्राइवेट बात करना चाह अगर रहे हैं? आना अगर आना नहीं, लाइव पे मैं आना नहीं कर नीचे रहे हैं। जाता हूँ। आप नहीं मरीम नहीं, चौधरी जी, वो प्राइवेट बात करना चाह रही हैं, ठीक है, वो नहीं, मुझे ये पता है वो। ये गलत बात है। क्यों प्राइवेट बात करनी है? क्यों यार, क्यों नहीं कर सकते? अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने जल्दी से, मतलब जो कपड़े वो बेचती हैं, गलती से उन्होंने 7 गज की सलवार बना दी है, उसे छोटा करने का तरीका मुझसे नहीं पूछेंगी? तू कौन होता है बीच में पूछने वाला? वो कह रही है नहीं आना है। ओके, नहीं आप नहीं आएंगी, आप अलाउड नहीं है, उनको बता दो, उनको बता दो आपको, आप अलाउड नहीं है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी वीडियो है इनकी, मैं देखता हूँ, बहुत प्यारी वीडियो बनाती हैं, सिंपल वीडियो बनाती हैं और बहुत सीधी सादी वीडियो अच्छा भाई बनाती है, आपको मैं माशाल्लाह। एक बहुत प्यारी एक लग रही होती हैं आप, मरियम एक चौधरी। ना जी एक स्कूल की बात बताता हूँ। एक स्कूल की जी, बात बताता हूँ, हम 8 क्लास में पढ़ते थे, तो हमारा बाहर चने वाला खड़ा हुआ था। अरसलान, हम आई ना लव यू हमारे पास ब्रदर। 10 रुपए थे, तो हमने कहा कि उसको कहा कि चने दे दो 10 रुपए के ना, उसने दे दिया। हमने हाथ में और इतने से पकड़ के ना उसमें निशाने लगाने शुरू कर दिए कि ज्यादा हो जाएंगे ये हमें सारे दे देगा। हम निशाने लगाते रहे जब तक वो बनते रहे। तो जब उसने तैयार किया ना, तो उसने एक पूड़ी सी निकाली, वो उसमें जितने डलते थे वो डाल के बकाया रख लिए। हमने कहा यार ये सारे हमारे हैं, कहता तुझे ये उस्ताद नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे ही दे रहे हैं।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਓ। अरसलान भाई, अगर बहुत ज़रूरी है तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। मैं बहुत ही माजरत के साथ आधा लाइव ते आओ कट्ठे बांधूं बस। अच्छा, मैं अरसलान भाई थोड़ा डर गया था, मैंने कहा कि ये अचानक क्या हो गया। मैं अरसलान भाई माजरत ना, मैं हुणे तारिक भाई को वाहिद भाई कोई आधा पिया मैं गड्डी इंटर करवावनी है, नंबर नहीं चाहिए। अच्छा, मैं गड्डी इंटर करवावनी है, आई एम सो सॉरी। मेरे को अगर तुसा आधा घंटा टाइम दे दियो तो मैं वाल लाइव ते आवे सा प्लीज, क्योंकि मैं इतू बिल्कुल पहले ही आके बैठा हूं वाहिद भाई को। अच्छा वाहिद भाई, ये बहुत प्यारे शायर हैं, अरसलान भाई जो आए हुए हैं ना, जी कमाल अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह। जमान भाई, कमाल की शायरी, और ये जो इनके लफ्ज है ना, मैं आपको क्या बताऊं वाहिद भाई, आप हैरान हो जाएंगे। आई एम अगर ये लाइव पे अच्छा आना चाहते हैं तो मैं नीचे बैठता हूँ फिर। नहीं, मैं वैसे भी कट कर रहा हूँ। अरसलान भाई से आप बात करें थोड़ी सी, बहुत मजा आएगा आपको। अरसलान भाई नहीं प्लीज नहीं, आप थोड़ी अस्सलाम देर के भाई लिए आ आए। जाए, आ जाए, आ ओके, जाए अस्सलाम हाँ। भाई। जमान भाई, मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग रही किसी बहन भाई को? तो नहीं आप नहीं प्लीज मुझे, जहाँ पे मैं गलत ट्रैक पे होने चाहूँ, मुझे रोक लिया करे। मुझे इससे नहीं नहीं होता नहीं, था। आप यकीन करें, आप जब बोलते हैं बहुत प्यारा, और आप इसमें समझ भी है हम्म, सबके। ये आप देखें ना, आप फेयर हैं, आपने कभी दिल में या कोई ऐसी बात नहीं करते जो दुखती हो। इससे सीखना भी चाहिए ना। आप तो टीचर हैं, समझे हमारे, आप टीचर हैं जो दुखती हो। नहीं वो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना टॉपिक स्टार्ट करें, जैसे आप गपशप कर रहे हैं ना, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अपना अस्सलाम वालेकुम। सर, आप वेलकम टू माय लाइफ एंड दिस इज अ ऑनर। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जमान भाई, जी 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 जी। रेफर ऑफ इमदाद भाई, I'm really appreciate you and highly thankful to you that you accepted my life. So उसके बाद आप जानते हो मैं जस्ट क्विट हूँ, मैं तो खटल करता हूँ, मुझे ये चिल माहौल जो होते हैं ये तो आते ही नहीं है। हम शहर आप लोग मेरे छोटे भाई हो यार। आप अपने गपशप जो वो स्टार्ट करें, मैं सुन रहा हूँ, दिल से सुन रहा हूँ, और आपकी हर गपशप हर लफ्ज का मैं क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, असल में इमदाद जो है छोटा भाई है, उसकी जब तक क्लास ना लूँ ना तो मेरी यार चाय हजम नहीं होती, इसलिए तो ना बेचारा वो मुझे कहता मेरे भाई यार आप कुछ ज्यादा नहीं खुल जाते हो। मैंने कहा नहीं यार, तू बच्चे तुझे देख के मजा बड़ा आता है। और हमारे घर में एक मामू आया यार, हमारे मामू आया, सब कहने लगे मामू जान बहुत अच्छे हैं, मामू जान बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सारे बहन भाई भी कही। और तो मुझसे कहते हैं आपका क्या ख्याल है मामू जान के बारे में? मैं क्या गंदा है। अच्छा, मामू was not expecting this. I got to say गंदा है मामू। मामू की भी मामी जो है मोटी है, इसकी बीवी मोटी है। चले सॉरी अस्सलाम भाई, कुछ सुनाए प्यारी सी चीज यार। तो हम आपके वक्त होंगे, अगर मतलब लाजमी नहीं है कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं। इफ नहीं यार, कमान नहीं सुनाए आपको लगे कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो, इतने केड़े छोले बेचे वेचे बैठे हुए हैं, गल्ला करने वास्ते बैठे हुए हैं। तो तू तो दूध डुल वाल चार पीस गल करे ना ब्रावा। अगर शादी की खुशी देखना चाहते हैं आप कारगिल। हाँ जी, ये तहसीब हाफी ने कहा था कि मुझे तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। सुना होगा आपने? नहीं नहीं सुनो, नहीं सुनो, नहीं सुना? तहजीब हाफी हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान। उन्होंने कहा था तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, स्टार्टिंग में वहीं से कर रहा हूँ। तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? ये साइंस, ज्योग्राफिया, साइकोलॉजी, फलसफा, ये सब जानना भी जरूरी है, लेकिन
मगर ये बताओ कि तुम उसके घर का पता जानते हो। वाह स्टार्टिंग इस चीज से है कि मैंने उसको रिप्लाई किया था, रिप्लाई यही इस अंदाज में किया है कि मुझे हुस्न पर दस्तरस तो नहीं पर मोहब्बत जरा जानता हूँ। ये मेरा अपना है। मुझे हुस्न पर दस्तरस तो नहीं पर मोहब्बत जरा जानता हूँ। मेरा आईना उनकी आंखें हैं साहिब, वहां मैं हूँ सदा जानता हूँ। और मेरी साइंस जगराफिया और फलसफा, मेरी साइंस जगराफिया और फलसफा मोहब्बत फकत है। मेरे सीने में जिस जगह चाहे धड़के, मेरे दिल में है घर यार का जानता हूँ। मुझे हुस्न पर दस्तरस तो नहीं पर मोहब्बत जरा जानता हूँ। सो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब नहीं स्टार्ट माशाल्लाह करेंगे। माशाल्लाह। मुझे इलामा इकबाल साहब की एक बात याद है कि इलामा इकबाल बाजार हुसैन में जा रहे थे। जी इलामा बिल्कुल। इकबाल बाजार हुसैन से जा रहे थे, तो ऊपर उन्होंने नजर उठाई तो सामने एक गैलरी के अंदर एक रकासा खड़ी हुई थी। ठीक है, बिल्कुल बेहुदा अंदाज में। हाँ खड़ी हुई थी, बस सिंपल, बड़े चमक चलो किस्म के कपड़े पहन के। अच्छा ऑफ तो कोर्स जब इलामा इकबाल ने ऊपर देखा तो ऊपर से रकासा ने कहा कि जो सरों पे सनम देखते हैं, सही। वो सरों पे सनम देखते हैं, पहले वो अपना सर कलम देखते हैं। तो इलामा इकबाल ने जवाब दिया, न तुझ से है गर्ज, न तेरी सूरत से है गर्ज, हम तो खुदा की खुदाई देखते हैं। ऑफ कोर्स ये जो चीजें हैं ना, ये आई डोंट थिंक के हर किसी को ये समझ आए। जो कमेंट्स में भी हमारे ब्रदर्स बैठे हैं, नहीं लाजमी नहीं है बिल्कुल कि हर किसी को समझ आए, बट आपने जो कुछ कहा है वो कुछ कम नहीं है। वो सबका जोड़ तोड़ सब कुछ एंड कर दिया है आपने। नहीं अल्लामा मैं इकबाल तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा इकबाल तो वो शायर हैं जिनको शायरों ने भी कहा है कि हम खुदा का शिकवा कमाल। करें, हम खुदा का शिकवा करें। हम इकबाल थोड़ी हैं, शायरों ने कहा है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। जितने भी हाय हाय शोरा कराम गुजरे इकबाल के बाद कहा है। सो मैंने एक छोटी सी एक नज्म गजल लिखी है। सो उम्मीद है आप लोग दिल से सुनेंगे कि मुझे मेरे बारे में कुछ मत सुनाना, मुझे मेरे बारे में कुछ मत सुनाना, मुझको भूले जमाना हुआ है। मुझे मेरे बारे में कुछ मत सुनाना, मुझको भूले जमाना हुआ है। कहीं कश्मकश में न रुक जाए धड़कन, ये जल्दी कहो कैसे आना हुआ है। वाह 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 जी वाह। करें करें क्या भरोसा किसी जात पर हम, करें क्या भरोसा किसी जात पर हम, कि जब अपना ही दिल बेगाना हुआ है। वाह न है सब्ज पत्ते न छाँव न फल है। ये शायर खुद को कह रहा है, यानी मैं अपने आप को कह रहा हूँ। न है सब्ज पत्ते न छाँव न फल है, ये तू किस शजर का दीवाना हुआ है। वाह और मुझे रोना है तुम जरा फिर से लौटो, मुझे रोना है तुम जरा फिर से लौटो, नया दुख दो पिछला पुराना हुआ है। मुझे मेरे वाह बारे में कुछ मत सुनाना, मुझको भूले जमाना हुआ है। फकत यार के दर पे रहने के आदी, फकत यार के दर पे रहने का आदी, तेरा मैं कदे कैसे जाना हुआ है। वाह जरा वाह शिकवे है ना, महबूब शिकवे कर रहा है, यानी बेतुके शिकवे, समझते हैं आप। मतलब शिकवा बनता जी ही जी नहीं है, वो बिल्कुल शिकवा कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल तो उससे सवाल किया जा रहा है कि जरा खुल के बोलो कि क्या ना हुआ है, जरा वाह खुल के बोलो कि क्या ना हुआ है। फिलाना हुआ है फुलाना हुआ है, मुझको वाह भूले जमाना हुआ है। वहां आसमां क्या जमी पर बिछा है, वहां आसमां क्या जमी पर बिछा है, जहां पर तेरा अब ठिकाना हुआ है। और अब बस खिजां राज करती है, जब से सजन मेरे घर से रवाना हुआ है। वाह वाह ब्यूटीफुल। इसका मतलब है कि मेरी उम्र भर की कमाई है कैसर, कैसर मेरा तखल्लुस है। मेरा नाम अरसलान है, कैसर मेरा तखल्लुस जी कैसे जी है। मेरी उम्र भर की कमाई है कैसर, तेरा दुख गजल में खजाना हुआ है। मुझे मेरे बारे में कुछ मत सुनाना, मुझको भूले जमाना हुआ है। वाह वाह
और तो कुछ नहीं, बट एक शेर मैं सुनाता हूँ, एक शेर मेरा सुन लेना यार। उम्मीद है लाजमी एप्रिसिएशन भी होती, उम्मीद है दिल से सुनने वाले भी हो ना, वो तालियां ना भी बजाएं तो बस यही हमारे लिए काफी होता है, दिल से अरे सुनने मेरी वाले। बहन आई है, मेरी बहन आई है, मेरी बहन आई है, मेरी बहन आई है, मेरी प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बहन आई है। हमारी भी बहन अस्सलामुअलैकुम है। वहीद भाई। भाई को लाइव पे देखे तो बहन सलाम करने ना आए। मेरी बहन कसम से, अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता ना तो मैं अपने लिए गॉड ऑफ ऑनर ना लेता, मैं कसम से अपनी बहन के लिए ना तमाम फौज को गॉड ऑफ ऑनर दिलवाता आपसे। और आप मंच के ऊपर यूं खड़े होके खड़ी होती, सब्ज आपकी कमीज होती, सफेद आपकी सलवार होती और आपका सफेद दुपट्टा होता, और मेरी बहन की आंखों में नूर होता और पूरे पाकिस्तान की बेटी होती, पाकिस्तान की। और वहीद भाई यही तो रिस्पेक्ट की वजह से आपके पास आती हूँ सलाम दुआ करने के लिए। मैं बस अभी वहीद भाई काम छोड़ा है तो मैंने देखा आप लाइव पे थे, तो मैंने कहा मैं रास्ते में ही चले जाते जाते बात कर लेती हूँ, सलाम दुआ तो डेफिनेटली बनती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी वेलकम आपका हमारे भाई की लाइव पे। माशाल्लाह बहन है आप हमारी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको इससे दे। थैंक यू। तो हम तो भाईजान की वहीद भाई जो है हमारे प्यारे भाई हैं, इनकी लाइफ में हम फर्स्ट टाइम है, वो भी रेफर बाय इमदाद हुसैन, हमारे प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके थ्रू है। वो सलमान वो नहीं है खूबसूरत आंखों वाला लड़का जिसको लड़की नहीं मिलती पूरे शहर में। उसका प्रॉब्लम ये होता है भाई ये भी तो हो सकता है कि पूरी लड़कियां ही उसकी आंखों में मर रही होती हो। नहीं, प्रॉब्लम ये होता है उसका रिश्ता मांगने गई उसकी माँ, तो कहने लगी कि लड़का लड़की की आपस में बात कर ले। अब इमदाद उसको कहता है बाजी आप कौन सी क्लास में है? तो फिर मेरा ही भाई हुआ ना। शरीफ आदमी, गलती से एक हस्बैंड बन गया था, बाकी सब भाई बन गए। भाई कमेंट्स भी आ रहे हैं भाई, हमारे भाई कमेंट्स पढ़े ना यार, मैं तो आंखों का। वहीद भाई कमेंट नहीं पढ़ते, इसीलिए तो इनकी लाइव पे आते हैं कि नीचे बैठने का फायदा नहीं होता। नो वहीद भाई आपको मैं रियलिटी बताऊं वहीद भाई, नाराज भी, ये जो कमेंट्स हम नहीं पढ़ते, ये हमें जो कमेंट्स करने वाले हैं उनकी मोहब्बत है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जरा नवाजिए। अगर हम उनके कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी गपशप में बिजी हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर वो हमें समझते हैं कि हम उनके कमेंट्स इग्नोर कर रहे हैं, अगर हम उनको कमेंट्स का जस्ट कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, तो जो लोग हमें देख रहे हैं व्हाट डू यू थिंक, वो इसीलिए देख रहे हैं हम कमेंट्स पढ़ते रहे ऐसे मुंह बना के, नहीं मिलती दिस एंड दैट, ये वो, ये सीन। कमेंट्स आ रहे हैं, वो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, वो रिस्पेक्ट दें, हम उनकी इज्जत करते हैं। अच्छा ये मैसेज क्या लिखा हुआ है उर्दू का? वहीद लाइव पे नहीं आओगे। वहीद भाई की तो प्रॉब्लम है, वहीद भाई का तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भी जो लोग आते हैं रियली रिस्पेक्ट है उनकी, वो आते हैं टाइम देते हैं, उनके कमेंट पढ़ना हमारे लिए मस्ट जरूरी होता है। नहीं बिल्कुल मस्ट है। ऑफ कोर्स लिसन टू मी, देखो सेमन बहन आप बहन है हमारी, आप बहन देखें सेमन, आप वो अल्लाह पाक इज्जत दे, आप मेरी बात सुने, आप बहन है हमारी, लिसन टू मी। अगर फॉर एग्जांपल बंदा बिजी, जैसे मैं आता हूँ, मैं अपनी सिर्फ बताऊँ, मैं जब लाइव पे आता हूँ, इमदाद भाई जानते हैं कुछ भी नहीं है, मतलब जो कमेंट्स आ रहे हैं हम रिप्लाई नहीं करते, वाई? बिकॉज मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ। अब मैं एक पोएट्री कर रहा हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक, जब मैं पोएट्री कर रहा हूँ, पोएट्री के बीच में मैं कुछ बोलूंगा, मतलब मैं कमेंट्स देख के उनको रिप्लाई कर सकता हूँ? नो आई एग्री विद यू। इसीलिए मैं भी यही कहती हूँ, क्योंकि जब दो बंदे बात कर रहे होते हैं ना, तो समटाइम बंदे थिंक करते हैं कि वो इग्नोर द कमेंट, हम इग्नोर नहीं कर रहे होते उस वक्त, हम उस वक्त बात कर रहे होते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि बात काट के दूसरे को जवाब दिया जाए। हाँ, हम दिल की आंखों से देख रहे हैं, हम जुबान से नहीं बोल रहे हैं, हम दिल की आंख से देख रहे हैं सब। बिल्कुल यही हिसाब है, बिल्कुल एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। और आई थिंक जो नीचे आए होते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि समटाइम वो भी थोड़े से हाइपर हो जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं
going, you ignoring me, you didn't reply me, नहीं so वो ये नहीं उससे कहते, वो कहते कहते तो खसमानू अभी खाओ। मैं छोड़ें अगर सारी आसमान बातों को, तो मैं वहीद भाई की परमिशन पे बैठा हूँ कि वो मुझे परमिशन दें तो कुछ हम सुनाएं। जी जी बिस्मिल्लाह सुनाए बिस्मिल्लाह, सुनाए। सुनाए। तो यही कि छोटा सा है कि मैं भिखारी हूँ, भिखारी तो आप समझते हो, मैं भिखारी हूँ तेरी मोहब्बत का। वहीद भाई फायू, जी जी मैं भिखारी हूँ तेरी मोहब्बत का, मुझको अपना बनाओगे क्या? हाँ जी, मेरी ताज़ियत को आए हो, मेरी ताज़ियत को आए हो, छोड़ो मेरा गम मनाओगे क्या? और बन गया हूँ मुसाफिर चट्टानी राहों का, बन गया हूँ मुसाफिर चट्टानी हाँ राहों जी का, तुम सफर में साथ जाओगे क्या? वाह मिलने से पहले जाने की फिक्र, मिलने से पहले जाने की फिक्र, मुझसे दामन छुड़ाओगे क्या? वाह और किसी और को रो रहे हो मेरे पास बैठकर, किसी और को रो रहे हो मेरे पास बैठकर, अब मुझे और भी आजमाओगे क्या? वाह यूं तो आते नहीं हो अगर मर जाऊं, यूं तो आते नहीं हो अगर मर जाऊं, तुम जनाजे पे मेरे आओगे क्या? और मेरी उजड़ी हुई हालत को देख कर कैसा, मेरी उजड़ी हुई हालत को देख